Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. This is a special video on the PIB. So I'll be discussing the PIB for the month of September. This is a monthly compilation for September 2020. And as you know that PIB is very important for your prelims and mains examination. So let's get started. And before I begin, those of you who have written the prelims examination this year, so you must need to enroll yourself for the test series of the mains examination. So we have come with a mains assessment program where you will get a holistic approach to your mains answer series, right? So you can enroll yourself with a good discount. So you can check the description of this video for more details. And those of you who are looking forward for the upcoming prelims examination, we have also launched prelims mock test series for the upcoming examination. So you can check the description of this video with the coupon code where you can get a discount. So do check the description of the video. Now coming to the first news that was reported is InSpace. InSpace is again very important when it's come to science and technology. It is equally important for your mains examination as well as prelims examination. So let's see what are the details that are coming from here. So Government of India has launched InSpace Promotion for Authorization Center. It is better known as InSpace, and this aims to promote the private investment and innovation in the space sector. So this is something which was long due in terms of the space sector, and this will boost the space sector, and at the same time it will call for the more private investment, right? So these are some of the two key components of it. First is the private investment and second is the innovation. Now talking about the advantages of the InSpace के क्या advantages होंगे? So the first, it would provide the technical support. The second, share the cash incentive facilities that would be for the other monetary financial institutions. Third, allow to establish temporary facilities by the Department of Space premises. Fourth, it would also allow to bid the requirement coming from the New Space India Limited, right? Now the last would be partner in science and space exploration mission. So India is looking forward for the space exploration mission in which InSpace is going to augment this, right? Now talking about the participation of the private player, बात करें अगर funding की या फिर private players की, so what they will do, they would build the satellite, the capacities would be building the satellites. Second would be building the launch vehicles, carry out the launches, develop application and provide space-based services, right? And the last would be to develop subsystem and system for the space sector activities. इससे पहले private players को space में allow नहीं किया गया था. This sector is considered to be very important, right? So this is something which is very important in terms of the private players. Now, Business Reform Action Plan ranking. So this is the ranking which is coming from the Business Reform Action Plan, better known as BRAP, right? BRAP is very important. Prelims में यहाँ से direct सवाल पूछे जा सकते हैं. So the Union Finance Ministry has announced Business Reform Action Plan for ranking the states. जो भी state होंगे उनको rank करने के लिए एक category बनाई गई है, एक action plan बनाई गई है. Now the current ranking announced by 2018-19, the ranking was done in 15 also, 16 also and 17-18, right? तो रैंकिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है? सो रैंकिंग इंक्लूड 180 रिफॉर्म पॉइंट्स, राइट, जिसमें 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज को कवर किया जाता है. एज एन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सिंगल विंडो सिस्टम होगी, लेबर, एनवायरमेंट और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जिनके हिसाब से स्टेट्स को रैंक किया जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द टॉप स्टेट्स अंडर BRAP, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है? सो द फर्स्ट, द रैंक टॉप इज आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना and Madhya Pradesh, right? So these state rank top 4 in the BRAP. Now states which shows the most improvement since 2018 ranking is उत्तर प्रदेश. तो सबसे अच्छी जिस स्टेट ने इम्प्रूवमेंट की है वो है उत्तर प्रदेश, right? So from rank 12 in 2018 it has moved to rank 2 in 2019, right? So this point is very important. आप ये point और ये वाले point बिल्कुल बहुत ध्यान से रखें. Now Jigyasa program, this is again most important program of Government of India. So promotion of scientific temper through student scientist connect program, right? Jigyasa is something which would be giving the new innovation mind in science and technology. तो prelims में तो अक्सर इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं.
नाउ इट इज़ अ स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम, जहाँ पे साइंटिस्ट और स्टूडेंट को एक मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे. एंड टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है. दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन कोलैबोरेशन विद द केंद्र विद्यालय संगठन, जिसको आप शॉर्ट में KV बोलते हो, केंद्र विद्यालय के नाम से लोग जानते हैं. सो KV वुड बी कोलैबोरेटिंग विद द CSIR. और जो फोकस है स्कीम की, so the focus is ongoing the connecting school students scientists so that they could extend the student classroom learning programs. होता है क्या है कि एक मोनोटोनस तरीके से पढ़ाने से बच्चों की जो कैपेबिलिटीज़ है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो कहीं ना कहीं दबती है, राइट. सो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, अगर इस तरह के इनोवेशंस किए जाए CSIR के थ्रू या केंद्र विद्यालय संगठन के थ्रू और भी स्कूल्स में, सो इट वुड बी अ वेल प्लान्ड रिसर्च रेगुलेटरी बेस्ड लर्निंग फॉर द स्टूडेंट एंड मेकिंग देयर माइंड इंक्लाइन टूवर्ड्स द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट. तो आप अपने जब आंसर्स भी लिखें मेंस में, तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें. नाउ इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर बात करूँ, तो स्टूडेंट रेसिडेंशियल प्रोग्राम बनाए गए. ऐसे बच्चे हु वांट टू कम इनटू द रेसिडेंशियल प्रोग्राम, दे कैन आल्सो एनरोल साइंटिस्ट एज अ टीचर एंड अ टीचर एज अ साइंटिस्ट, राइट. लैब स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होगी, ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स होंगे, visits of scientists to the school and outreach program, science and math clubs would be also there, project for the National Children Science Congress, this would be also there, and tinkering laboratories. So tinkering laboratories is something where a lot of innovation is done through thinking processes, right. And some of the activities would include under this program. तो ये कुछ important programs हैं जो कि इसके अंदर होगी. Now it will also enable the student and teachers to practically live in the theoretical concepts, right. जहाँ पे scientists by the visiting CSR laboratories and participating in the mini science project, जो छोटे छोटे मिनी साइंस प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकेंगे और अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू इनोवेशन में भी मदद कर पाएंगे, राइट. Now, 5-star village scheme. This is very important scheme launched by India Post. We'll see what are the other details coming from this. So this is a scheme. So if there is any scheme, this inevitably become very important for the prelims examination. Now, India Post has launched 5-star village scheme. This is to ensure the rural coverage to the postal scheme, right? तो ये India Post इसको launch करेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखें. Now, what is 5-star village scheme? क्या क्या important चीजें हैं that you must know. So this is first implemented by the Department of Post, right? And it is called 5-star program to ensure universal coverage of the flagship postal scheme in the rural area in the country, right? Which I have told you in the beginning. Now the second aim of this scheme is to seek bridge as a gap in the public awareness. जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनके बीच एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे उनको अवेयर किया जाए कि हाउ द पोस्टल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन बी स्पेशली कमिंग टू द इंटीरियर ऑफ द विलेज. जो आम जनता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, दे कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ इट, राइट. द मोस्ट पीपल, द बॉटम अगर हायरार्की अगर बात करें, तो जो ऐसे लोग जो इंटीरियर ऑफ विलेज में हैं, उन लोगों तक भी जो पोस्टल की सर्विसेज हैं वो पहुंच पाएँ, राइट. जो हमारी सुपरफिशियल सर्विसेज हैं वो रूरल एरिया में तो मिलते हैं, बट टॉकिंग अबाउट अर्बन एरिया में मिलते हैं, बट रूरल एरिया में प्रॉब्लम्स आती है, इंटीरियर्स में प्रॉब्लम आती है कि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं. Now all postal products and services would be made available under the marketed and publicized village level पे हम चीज कहेंगे, and this would also be under the scheme, right? So the scheme aims कि जो village level पे जितनी चीजें हैं postal services वो लोगों को avail कराई जाए, right? And the branch office would also function as a one-stop cater to all postal office related services to the villages, right? So the more focus is given to the village, the block which is essentially should be connected to the डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, राइट. ये ज़रूरी है कि हर एक विलेज को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से कम कनेक्ट किया जाए. उनके जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबिलिटी हर विलेजेस को मिल पाए, राइट. नाउ द स्कीम कवर्ड अंडर द जो 5-star स्कीम्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, बिकॉज एनीवन वुड आस्क यू कि जो 5-star स्कीम है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, राइट. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट. सो फर्स्ट इज द सेविंग बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट,
एनसीवी किसान विकास पत्रिका जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट या पीपीएफ अकाउंट जो है वो भी इंडिविजुअल जो गांव के लोग हैं या फिर जो विलेज के सिटीजन हैं, कहीं के भी लोग हैं, वो इसको खुलवा सकते हैं। नाउ फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम लिंक्ड विद इंडिया पोस्ट पेमेंट कैन ऑल्सो बी ओपन। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं दैट वुड बी गिवन, दिस वुड बी फॉर द बेसिकली फॉर द रूरल अर्बन एरियाज, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी मिलेंगी। नाउ एट द सेम टाइम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दिस वुड अकाउंट द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। एंड द लास्ट इज द स्कीम वुड इम्प्लीमेंट बाय द टीम ऑफ 5 ग्रामीण डाक सेवा। ठीक है, जो डाक सेवक होंगे वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिनको एक विलेज असाइन की जाएगी फॉर मार्केटिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। जिस तरह से कोई नॉर्मल आपने प्राइवेट कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स देखे हैं जो जाके अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उस तरह से जो डाक सेवक होंगे वो लोगों को अवेयर करेंगे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द इंडियन पोस्ट दैट यू शुड अवेल, लाइक सर्विसेज, सेविंग, इंश्योरेंस स्कीम दैट इज ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो इन सारे प्रोडक्ट्स की जो जानकारी है वो डाक सेवक दे वुड प्रोवाइड दिस टू द विलेज ऑफ द पीपल, राइट। तो ये काम होगा ग्रामीण डाक सेवक का। होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। Now, eGopala app, this is again an important app when it's come to the dairy sector in India. देखते हैं what are the important things that are coming from here. So, Prime Minister has launched the eGopala app, एक comprehensive breed improvement marketplace होगी जहाँ पे information होगी पोर्टल पे और directly use की जा सकती है by the farmers. And eGopala app will provide a solution to the farmer on the aspects such as किस तरह पे ये हमें मदद करेगी खास करके फार्मर्स को। सो द फर्स्ट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द फार्मर मैनेजिंग लाइफ स्टॉक दैट वुड इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द डिजीज फ्री जर्म प्लाज्म, राइट। सो जर्म प्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद ये फार्मर को गाइड करेगी कि किस तरह एनिमल के न्यूट्रिशंस अच्छे होने चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल यूजिंग द अप्रोप्रिएट आयुर्वेदिक मेडिसिन। सो दिस इज मोर लेस द होम रेमेडीज, राइट। और इथनो वेटनरी जो मेडिसिन हैं उनके बारे में भी जानकारी ऑलरेडी उस ऐप में होंगी। एंड द ऐप वुड ऑल्सो सेंड अलर्ट्स टू द फार्मर अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम दैट इज कैंपेन्ड इन द एरिया। जो भी जिस एरिया में रहते हैं उनके पिन कोड के जरिए, उनके स्टेट्स के जरिए जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है उनके बारे में उनको अलर्ट्स दिया जाएगा ऐप में, राइट। नाउ क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट framework, this is also one of the important thing which is coming from the Ministry of Housing and Urban Affairs. Let's see what are the details coming from here. So the objective of CSCAF is to provide the clear roadmap for the cities towards combating climate change, right? जो climate change को लेकर के किस तरह से प्लान करनी है, क्या एक्शन प्लान्स होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों पे इस प्रोग्राम के थ्रू बात की गई है, पूरी ऑब्जेक्टिव है। एंड द CSCAF initiative is intend to include the climate sensitive approach, right? किस तरह से एक अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट की जाए इंडिया में। टॉकिंग अबाउट कुछ की इंडिकेटर्स मैं आपको बताता हूँ। 24 की इंडिकेटर्स रखे गए हैं अक्रॉस 5 कैटेगरीज। सो दीज 28 जो इंडिकेटर्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो दीज 5 कैटेगरीज आर फर्स्ट एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग, सेकेंड इज अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, third is mobility and air quality, which is very important for the metropolitan cities like Delhi and Mumbai. Water management is equally very important and waste management. So ये 5 सब headings रखे गए हैं जिनके अंदर 28 indicators होंगे, right? And the climate center for the cities under the National Institute of Urban Affairs is supported by the Ministry of Housing and Urban Affairs, implementing the CSCAF, right? सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझें। और आपको इफ़ यू फाइंड समथिंग टू राइट डाउन, आप एक नोट बुक अपने साथ रख लें सो दैट यू कैन नोट डाउन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड यू कैन पॉज दिस ऑल्सो, राइट। नाउ स्ट्रीट्स फॉर द पीपल चैलेंज भी रखी गई है इसमें। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू नीड फॉर मेकिंग सिटीज़ मोर वॉकेबल एंड पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली। तो बेसिकली लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश की गई है। सो द चैलेंजेस would build on the advisory issued by the MOUH and holistic planning on the pedestrian market friendly spaces, right? And
The changes will support the cities across the country to develop the unified vision, street from the people in consultation with the stakeholder and the citizen. Now, पूरा aim क्या है? Aim to inspire the cities to create the walking friendly and vibrant streets. क्योंकि आपने फॉरेन्स में देखा होगा, चाहे वो स्पेन हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, सारे स्टेट्स में, इन कंट्रीज में क्या है कि जो वॉकेबल एरियाज है, वॉकेबल फ्री किया जाता है, चाहे वो साइकिलिंग हो, पीपल की वॉकिंग एरियाज हो, सर्विस लेन हो. सो थिंग्स आर मेड सो क्लियर कि उनको किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं हो, राइट. तो स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज रखी गई है सो दैट इट वुड बी क्विक, innovative and low cost measures, right? Now, IRAD app. So what is this? This is with regards to transportation. Let's see what are the details that is there. So Ministry of Road Transport and Highway is in the process of implementing the integrated road accident database project. This is known as IRAD, which will applicable across the country. एक PAN database बनाने की कोशिश की गई है so that the datas are accessible. So इसके कुछ instances हैं. The first instance is that it will be decided to implement the proposal. 6 states में पहले रखे जाएंगे. So the first is Maharashtra, Karnataka, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश and तमिलनाडु. सो जो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन जो IRAD की है वुड बी इंटरेस्टेड बाय द IIT मद्रास एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज. जो NICS है वो गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि IT रिलेटेड चीज़ों को देखती है और IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेशंस हैं. तो ये जो पॉइंट है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. नाउ ऐप की जो फंक्शनैलिटी है की बात करें तो ऐप वुड डेवलप द फंक्शन एंड इट विल इनेबल द स्टेक होल्डर सच एज द पुलिस, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एटसेट्रा टू यूज मोबाइल ऐप टू कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग द एक्सीडेंट्स, राइट. उसके अलावा द प्रोजेक्ट प्रपोज टू द IT बेस्ड सिस्टम फॉर कैप्चरिंग स्पॉट एक्सीडेंट यूजिंग द मोबाइल डेटा ऐप. तो सारे इंफॉर्मेशन ऐप के थ्रू जितने भी सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, चाहे वो पुलिस हो, ट्रांसपोर्ट हो, हेल्थ, उनको एक्सेस किया जा सकता है. Now this can also be utilized for various purposes like finding and cause of the accident, किस कारण से एक्सीडेंट हुई, क्या रेमेडियल तरीके हो सकते हैं, how we can improve the road infrastructure. जो एक्सीडेंट डेटा है वो पुलिस के पास आराम से मुहैया हो सकती है. And health services and other concerned department can access to the information and they could have a good database within their smartphones, right? नाउ स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं. क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड की अगर बात करें तो इस तरह के जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. सो दिस इज अ स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीटेशन ऑफ अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग स्कीम. ये क्रिएट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, इन्वेस्टमेंट फंड से. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ. So features, the fund has been created for funding the stalled project that has a net worth positive. ये इंक्लूड करती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो डिक्लेयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है या जो पेंडिंग प्रोसीड्स हैं NCLT, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके अंदर जो इंसॉल्वेंसी कोड होगी उनके थ्रू एक फंड बनाया जाएगा. तो पूरा जो ऑब्जेक्टिव है कि रिलीफ दिया जा सके होम बायर को फॉर द स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं दैट हैज बीन कंप्लीटली स्टॉल्ड, राइट. And it provide last mile funding to the streets of affordable and middle income households. Now this is a type of an alternative investment fund. ये आपके लिए बहुत ही important point है. So this is a type of alternate investment fund aims to provide the priority depth faced by the completion of the stalled projects. And the last is it cover the stalled brownfield projects, रेरा रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मिडिल हाउस इनकम कैटेगरीज के जो लोग हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, राइट. नाउ इंडियन एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर द स्टार गैलेक्सीज. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि कभी भी अगर कोई इनोवेशंस होती है स्टार या गैलेक्सीज में, सो दैट बिकम इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. नाउ इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्टार ऑब्जेक्टिव, जिसको एस्ट्रोसैट का भी नाम देते हैं. एस्ट्रोसैट के बारे में भी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन ऑन द डेली न्यूज एनालिसिस. इफ यू वॉच आवर सीरीज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. सो दे डिटेक्टेड द एक्सट्रीम यूवी लाइट. जो गैलेक्सी लोकेटेड थी ऑलमोस्ट 9.3 बिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ. सो ये डिस्टेंस है जहाँ पे हम इस बिलियन लाइट ईयर के थ्रू डिस्टेंस को नापते हैं, जो लंबी दूरी की जो डिस्टेंस होती है. सो द गैलेक्सी कॉल्ड एज AUDF S01, दिस इज न्यूमेरिक 1,
and it was discovered by the team of astronomer from the इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, राइट, पुणे में जो है वहाँ पे ये वहाँ से डिस्कवर्ड हुई है। और इंडिया के जो एस्ट्रोसैट है दैट वर एबल टू अचीव द यूनिक फीस्ट बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड नॉइस एंड UV-IT डिटेक्टर, राइट, उनके मदद से जो हबलर स्पेस टेलीस्कोप है US बेस्ड, वहाँ से भी मदद ली गई। Now, this discovery was important clue to make the dark ages of the universe ended at the light of the universe, right? So this is, you have to remember this AUFSD01 because this was discovered by the Pune, the Indian University Center for Astrophysics and Astronomy and Astrophysics. Now, entrepreneurial in residence under the Nidhi program. This is with regards to the development of entrepreneurial skill in India and entrepreneurial ecosystem in the country. Now, a brochure featuring entrepreneurial in residence under the National Innovative Development and Harnessing Innovation, जिसको निधि के नाम से भी जानते हैं, it was launched। और जो निधि है इसके 8 components हैं that support each stages of the nascent startup और ideal state at the market stage बनाएगी, right? क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अगर बात करें एंटरप्रेन्योरियल इन रेजिडेंस प्रोग्राम की, तो ये सपोर्ट करती है एस्पिरेशन ऑफ द बिडिंग एंटरप्रेन्योर एंड द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड गाइडेंस, किस तरह से जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक्सपीरियंस, इनोवेशन और हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके क्या बिजनेस कॉन्सेप्ट रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी रही है जो मार्केट में काम करती है, जो बेस्ट टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएंगे अपकमिंग या फिर जो न्यू कमर स्टार्टअप्स हैं उनके साथ, and partly set off their opportunity cost and high paying jobs capacity, right? And this program is important that it creates a pipeline of startup which would focus on young budding entrepreneurship. जो नए इंटरप्रेन्योर्स हैं या जो नए इंटरप्रेन्योर हैं जो नए स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ली गई है ताकि उनके जो भी जो ग्रीन शूट्स हैं या फिर जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मदद मिल सके। बडिंग का यहाँ मतलब है जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट, द न्यू एंटरप्रेन्योर्स। नाउ निधि दैट इज नेशनल इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम होगी दैट वुड बी इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST जो है, जहाँ पे क्यूमुलेटिव नॉलेज को इस्तेमाल किया जाएगा, इनोवेशन को रखा जाएगा और दिस वुड बी अ फ्रूटफुल स्टार्टअप्स। And this will aim to support the startup for ideal creation of the marketing stages. And it will also focus on smoothing and innovation of the entrepreneurial ecosystem in the country. जो मैंने आपको पहले बताया, जो ऐसे कई यूथ हैं जो अपने स्टार्टअप को फिनेंशियली तरीके से या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से what they do, they just lost their complete startup या complete concept, right? तो consequently it would usher the private effect of the country development in the social and economic spheres, right? So these are some of the important components of the Nidhi. Now moving to the other important news, that is Global Multidimensional Poverty Index in India. So this index rates the type of poverty in India. So this is equally important for your prelims examination. So Niti Aayog as a nodal agency has been assigned for the responsibility of leveraging and monitoring the Global Multidimensional Poverty Index. This is known as MPI, right? And the objective of the MPI is like global indices to drive reform and growth. This is known as GIRG. So एक एक्सरसाइज है जहाँ पे दे फुलफिल द नीड्स एंड मेजर द इंडियाज मॉनिटर परफॉर्मेंस, किस तरह की जो इंडिया की परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर की जाती है और एट सेम टाइम इट मेजर इट, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं लाइक सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स, राइट, किस तरह से इनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडिसेस टूल की जा रही है, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, हाउ देयर शुड बी रिफॉर्म इन द पॉलिसीज़, व्हाट थिंग्स दैट शुड बी बेटर इम्प्लीमेंटेड, लास्ट वाइल इम्प्लीमेंटेशन क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके क्या क्या लूप होल्स हैं या कहाँ उनको और इम्प्रूव किया जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर। एंड दिस इज इम्प्रूव्ड थ्रू ग्लोबल इंडेक्सेस टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ। Now, what is global MPI? So this is an international measure of the multidimensional poverty. ये 107 countries को cover करती है। This was first developed by in 2010 by the Oxford Poverty and Human Development Initiative, OPHI कहते हैं, जो कि UNDP के अंदर काम करती है, right? UNDP Human Development Reports के अंदर, and it releases at the high level political forum
और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यूनाइटेड नेशन की, हर साल जुलाई में रिपोर्ट पब्लिश की जाती है. Now it is compounded by scoring each survey household. जैसे जो 10 पैरामीटर्स हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपको बता दूं. So the first is nutrition, second is child mortality, years of schooling, कितने बच्चों ने किस टाइम पे स्कूल की है, स्कूल में अटेंडेंस किस तरह की है, कुकिंग फ्यूल किस तरह की यूज़ की जाती है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर कितनी है, उनमें TDS का क्या लेवल है वाटर में, electricity, housing and household assets. So these are some of the important parameters among which the MPI is again being calculated. And it is utilized by the National Family Health Survey. जो हमारी National Family Health Survey होती है उसमें ये सारी डेटास को इंक्लूड किया जाता है. जो NFHS है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज करती है एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के कोलैबोरेशन के साथ MPI के भी जो इंडेक्सेस हैं उनको देखा जाता है. Now आत्मनिर्भर भारत Arise ANIC initiative. This is again equally important for your general studies paper 3 and prelims examination. So अटल इनोवेशन मिशन जिसको AIM के नाम से भी जानते हैं, नीति आयोग ने आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इनोवेशन इंडिया चैलेंज के नाम से इसको लॉन्च किया. सो दिस एम्स टू बेसिकली इनोवेशन एंड MSME स्टार्टअप्स. जो इंडिया के जो छोटे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या जो छोटे स्टार्टअप्स हैं वो कैसे अपने आप को इनोवेशन के थ्रू बेसिकली नेशन बिल्डिंग में मदद कर सके और अपने इंटरप्रेन्योरल स्किल को ज़्यादा इंप्रूव कर सके. क्या क्या फीचर्स हैं इस प्रोग्राम के? सो दिस वुड बी ड्रिवन बाय द इसरो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को रखी गई है ताकि जो स्कीम का डोमेन है, जो दायरा है, वो बड़ा हो सके, राइट. एंड इट विल सपोर्ट द डिजर्विंग अप्लाइड रिसर्च बेस्ड इनोवेशन, जहाँ पे लोगों को फंडिंग दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से. दिस वुड बी अराउंड 50 लाख रुपीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रपोज्ड टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस, राइट. एंड द 15 आत्मनिर्भर भारत अराइज चैलेंजेस वुड बी पायनियरिंग इन इनोवेशन टू मेक इन इंडिया इनोवेशंस. उसके अलावा जो MSME के स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे एडवांस रिसर्च डेवलपमेंट आइडियाज, फील्ड डेवलपमेंट फॉर द MSME प्रोडक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट बाय द गवर्नमेंट्स, राइट. Now, electricity right of consumer rule 2020. Now, the Union Power Ministry has drafted electricity right of consumer rule 2020. So, इस ड्राफ्ट के अंदर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है जिसको ACRCs भी कहते हैं, they would fix the average number of duration of outage per electricity consumer per year by the DISCOMs, right? तो ये जो डिसीजन होगी वो SCRC के अंदर होगी, डिस्कॉम डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले पाएंगे. Now only 2 documents for the connection would be uploaded of 10 kV and no estimation of demand charges would be there up to 150 kV, right? तो ये आप समझ लें इसको. Now a new connection would also be provided for the existing connection जहाँ पे 7 दिन से ज़्यादा का मेट्रो में टाइम नहीं दिया जाएगा, and 50 days for the municipal areas and 30 days for the rural areas. और बात करें पेमेंट की, जो बिल पेमेंट की जो ऑप्शंस है वो कैश में होगी, चेक में होगी और डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी पेमेंट UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर पाएंगे. आज के टाइम में बहुत सारे वॉलेट्स हैं, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो या फिर पेटीएम हो, लोग इससे भी ऑनलाइन तरीके से दे मेक द पेमेंट, राइट. एंड द ड्राफ्ट रिकॉग्निशन विल इमर्ज एज अ कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर विच विल नो एज प्रो कंज्यूमर, और जो पर्सन होगी दैट वुड बी लाइक कंज्यूमर एंड ऑल्सो विल सेट अप the rooftop unit for the solarized and irrigation pumps. So solar power के through भी government initiate कर रही है so that more solar power can be used, and they will have the right to procure and produce the electricity for self use, inject excess and using the grid of same point connection through the prescribed SCRC. जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, जो कमीशन होगी, उसके जो गाइडलाइन होंगे ग्रिड को लेकर के, उसके अकॉर्डिंगली उनको काम करना पड़ेगा. एंड देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक कंपनसेशन दैट वुड बी प्रोवाइडेड एज पॉसिबल एज डिले सर्विस बाय द डिस्कॉम्स. अगर डिस्कॉम्स की तरफ से कोई सर्विसेज में डिले की जाती है तो द डिस्कॉम हैज टू पे द कंपनसेशन अमाउंट. नाउ ई-ग्राम स्वराज पोर्टल. This is with regards to the simplified work-based accounting for the Panchayati Raj. So this initiative is under the Ministry of Panchayati Raj. तो विजन ये रखी गई है कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन लाया जा सके हमारे पंचायत के एरियाज में,
और जो रूरल एरिया है उसको एम्पावर किया जा सके थ्रू द डिजिटल मोड. सो द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ टूल कॉल एज ई ग्राम स्वराज पोर्टल, जहाँ पे मिनिस्ट्री इफेक्टिवली मॉनिटर करेगी, इवेलुएट करेगी कि जो ग्राम पंचायत से उसमें कितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ी है. सो ई ग्राम स्वराज विल यूनिफाई द प्लानिंग, अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटरिंग ऑन द फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, राइट. तो कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ एरियाज रखे गए हैं, एरिया ऑफ पॉलीफर एप्लीकेशंस, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरीज, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जिसको PFMS भी कहेंगे, एंड दिस वुड बी समथिंग दैट वुड बी ट्रैकिंग द गवर्नमेंट पंचायत एक्टिविटीज. तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी सेट करने की बात की गई है. एट द सेम टाइम इट वुड बी क्रिएटिंग सम सर्वेलेंस ऑल्सो. Now, it would provide a single window for capturing panchayat information with complete profile of the panchayat. Now, अगर बात करें 2021 की ईयर की, so there almost 2.43 lakh panchayat has been finalized under their GPDP, so that the e-Swaraj is actively there in the village level or other panchayat level. And further, 1.2 lakh gram panchayat has transacted online using the e-gram Swaraj payment module. So what is happening, like people is showing their inclination, their keenness toward the digitalization, but at the same time the safety, security and privacy of this online platform has to be equally mandated by the government of India. Now, generalized farm machinery performance testing portal, so this is with regards to the farm sector, the agriculture sectors. तो जो हमारी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड बेसिकली फार्म मैकेनरी प्लेटफॉर्म टेस्टिंग पोर्टल बनाया है उनके अपने डोमेन पे. सो द पोर्टल वुड बी डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर. सो ये एक तरह का स्टेप देखा जा रहा है टू इम्प्रूव द सर्विसेज एंड फार्म मशीनरी. जो टेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे दैट वुड ब्रिंग आउट ट्रांसपेरेंसी इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ machines, right? So the portal will facilitate the manufacturers in applying communication, monitoring the progress of testing. जो machine होगी that would be providing the seamless manner with the accessible from any locations, right? जो internet के through connected होगी और इस portal को use किया जा सकेगा. इस पोर्टल की क्या बेनिफिट्स होगी? इट वुड इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, देयर बाय रिड्यूसिंग द टेस्टिंग टाइम. जो एग्रीकल्चर मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, उनको यूज़ करने में जो टाइम लगती है वो यहाँ पे एक पोर्टल के थ्रू जो बहुत सारी जो इनोवेशंस हैं, जो चीज़ों को इम्प्रूव करने की बात की गई, खास करके जो फार्म मशीन टेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जाएगी. ना क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इस पोर्टल के, क्योंकि आपसे एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाएगी वो बेनिफिट्स को लेके पूछी जाएगी, या अगर आपने मेंस में लिखना है तो यू हैव टू इंश्योर कि यू नो द बेनिफिट्स. So first, this would facilitate applying the testing of the machinery online. Second, it would ensure transparency in the entire process of testing. It would give faster feedback, right? जो टाइमिंग है टेस्टिंग की वो रिड्यूस होगी, और जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग में वो कम होगी. टेस्टिंग एफिशिएंसी वुड अगेन इम्प्रूव थ्रू द टेस्टिंग, राइट? जो थ्रूनेस टेस्टिंग प्रमोट होगी इसमें. And flexible access होगी for the officer concerned at the ministry, and manufacturer can monitor the testing activities anywhere with the internet access, right? तो किस तरह की चीज़ें काम चल रही है उसको हर जगह से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है. Now, ultraviolet image telescope, this is UVIT. This is also very important for your prelims examination. तो जो अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप है जिसको UVIT कहते हैं, इट्स ए 3-in-1 इमेज टेलीस्कोप जहाँ पे विजिबिलिटी नियर अल्ट्रावायलेट या फार अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करेगी. सो दिस इज वन ऑफ द 5 पेरोल ऑन बोर्ड इंडियाज फर्स्ट मल्टीवेव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसाइट की मदद से. सो जो UVIT उसकी जो वेट अगर बात करें, क्योंकि कई बार एग्जाम में वेट भी पूछ ले जाते हैं, दिस इज 230 kg एंड दीज कंप्राइजेज ऑफ 2 सेपरेट टेलीस्कोप. एक नहीं बल्कि यहाँ पे 2 सेपरेट टेलीस्कोप यूज किए गए हैं, and one of which is visible and the other is near ultraviolet. So the second work only in the far ultraviolet, जो अगर दूरी ultraviolet level की है, the second one can be used. So it explored the star के जो clusters होते हैं, mapping of large and small galaxies, Milky Way galaxies हैं जिसको maligny clouds भी कहते हैं, या supernovae एक्टिविटीज़ जो है, या गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, ये सारी चीज़ों को इस टेलीस्कोप के थ्रू जो फार अल्ट्रावायलेट वाले जो हैं उनको यहाँ से ट्रैक किया जा सकता है. एंड द UVIT प्रोजेक्ट लेट्स टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विथ कोलैबोरेशन विद द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो पुणे में लोकेटेड है, राइट?
सो उसके साथ जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, जिसको TIFIR भी कहते हैं मुंबई में, सो दे वुड सर्व एज अ सेंटर फॉर इसरो एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसीज। तो कुछ कनाडा के साथ कोलैबोरेशन करके एस्ट्रोसेट के साथ वी आर लॉन्चिंग दिस अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। Now, कुछ important military exercises, because UPSC tend to ask some military exercises in the examination, so military exercises become very important. Now, अभ्यास की बात करें, अभ्यास फ्लाइट बेसिकली एक टेस्ट सक्सेसफुल अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल है जो कि दैट वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड. So this vehicle can use the target and evaluation for the various missile system. Abhyas is designated and developed by the aeronautical establishment, that is ADRDO, or air vehicle launch using under circulating boosters के through. This was the small gas turbine engine जो कि MSME based interior navigation system जो होती है INS उसके navigations को use करती है. Flight control जो basically computation में use किए जाते हैं वो सारी चीज़ें होंगी. And the vehicle program is fully autonomous flight. During this task campaign, the user requirement and the 5 kilometer flying altitude with the speed of 0.5 Mach, and it would endure 30 minutes to 20 ton capacity with the test vehicle in the successful achievements, right? तो अगर ये क्वेश्चन आपको मिलिट्री एक्सरसाइज में हो या फिर डिफेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो दिस यू कैन ईजिली हैंडल. नाउ द सेकंड वन इज पैसेज एक्सरसाइज. So this is PASEX basically, it's known as passage or PASEX, आप synonyms दोनों use कर सकते हैं. Now the Indian Navy undertook the passage exercise with Royal Australian Navy in the east of the ocean region. और जो एक्सरसाइज थी ये एम की गई थी कि किस तरह से जो इंटरपोर्टेबिलिटी उसको बढ़ाया जाए, इम्प्रूव की जाए, अंडरस्टैंडिंग को, जो बेटर प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, चाहे वो एंटी एयर एक्सरसाइजेज हो, वेपन फायरिंग हो, सीपमैन एक्सरसाइजेज हो, नोवल मैन्यूअर्स हो या फिर क्रॉस टेक फ्लाइंग ऑपरेशंस हो, इन सारी चीज़ों को आराम से ऑपरेट किया जा सके. एंड पैसेक्स एक्सरसाइज आर रेगुलरली कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी विद द यूनिट्स ऑफ फ्रेंडली फॉरेन नेव्स, राइट, जो पे वेसल विजिटिंग ईच अदर पोर्ट ड्यूरिंग द रेंडिजनस एट द सीज. और इसके थ्रू जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो ऑस्ट्रेलियन के नेवी है और इंडिया जो नेवी है, सो बोथ नेवीज वुड बिल्ड अ रोबस्ट रिलेशनशिप थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो नोन एज ऑसिन इंडेक्स, बेसिकली कंडक्टिव बाइनोली. सो ये साल में 2 बार होगी और इस इंडेक्स के थ्रू ये जो एक्सरसाइजेज हैं उससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो इंडियन नेवी है वो बहुत ज़्यादा अपनी क्वालिटी को और अपनी क्षमताओं को इम्प्रूव कर पाएगी, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइजेस and this was all about the details that is there for the September PIB. And if you're new to our channel, you must be aware we are also offering daily news topic wise analysis on our daily basis. So this you can find on our YouTube channel. हर दिन मैं यहाँ पे daily topic wise news analysis करता हूँ दोनों newspapers से. You can watch this and you can save a lot of your time. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Aptiplex Academy for Civil Services. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.